Fundamental analysis. Fundamental analysis means evaluating a security, calculating the intrinsic value, fair value of equity or a security by examining the different factors, by examining the economic factors, financial factors, qualitative and quantitative factors. We will study the overall economy, we will study the industry, and we will study the company's management. Accordingly, we are going to start with fundamental analysis. Liquidity ratios. What are the liquidity ratios? They will assess the business liquidity, whether they can convert their assets into cash easily, without any difficulty, without any delay. If they can convert their assets into cash easily, then they have a good current asset and current liability ratio. This ratio is useful to note down. This ratio is useful to suppliers. Note down, everybody. This ratio is useful to suppliers, employees, banks, etc. When bank is giving you a loan, they will check the liquidity ratio, whether they have good assets, they can convert the assets into cash without difficulty, and they can pay the loan amount. Okay, every industry, every company, they are supposed to calculate their liquid ratios, okay, so that they can pay off their short term loans to the bank. Whenever the amount is due, they can sell the assets and they can pay the amount. सपोज हमारे पास फिनिश गुड्स पड़ा है, तो हम लोग फिनिश गुड्स को डिस्काउंट में सेल करके वो भी असेट्स हम लोग अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली. So this is one trick. I have to pay the loan. I will sell my assets at a discount, 5% discount, and I will pay my loan amount. So converting your assets into cash, that is working capital management. You must have studied working capital management in second year. That is managing your current assets and current liabilities, making your banker happy, making your supplier happy, making your customer happy, all the stakeholders happy, then your current ratio is good. Okay, short term debts you have to repay immediately after selling your assets without any difficulty. When you are able to sell your assets, your product is good, of good quality, you can sell it easily at a good price. Note down. This subject is security analysis portfolio management. Unit 3. Unit 3 security analysis portfolio management. Chapter name is fundamental analysis. Profitability ratios क्या होते हैं? Gross profit ratio सुना है आपने? What is the formula? Gross profit upon sales into 100. यहाँ पे आप नेट सेल्स लिख सकते हो, जो रिटर्न आते हैं गुड्स उसको आप उसमें से कट कर सकते हो. नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस रिटर्न्स, रिटर्न सेल्स. उसके बाद आता है नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो. ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो मीन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर लेना है, न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100. यानी कॉस्ट कितना परसेंटेज है कंपेयर टू सेल्स, तो हमें कॉस्ट का परसेंटेज मालूम पड़ेगा कि दिस इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट परसेंटेज. वैसे ही हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं. यानी ईबीआईटी न्यूमरेटर में आएगा. मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख रही हूँ, आप लोग ऑब्लिक में ईबीआईटी भी लिख सकते हो.
नेट सेल्स इंटू 100 डिवाइड, यानी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज टू सेल्स मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आएगा नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में और भी है आगे, प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन असेट्स, ये भी है सब, बहुत सारा है इसके अंदर। 12 है, 12, ये मैंने 4 ही बताए अभी, और 8 है, ठीक है, और 8 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ईबीआईटी आता है हमेशा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी कितना कमा रही है असेट्स में इन्वेस्टमेंट करके, अलग अलग मशीन्स इन्वेस्ट किया है मशीन्स में, तो कंपनी उसमें से कितना कमा रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ईपीएस सुना है ना आप लोगों ने, अर्निंग पर शेयर। हु विल टेल मी द फॉर्मूला फॉर अर्निंग पर शेयर? कौन बताएगा? पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है प्रॉफिट्स में से, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय, वेरी गुड इरीन थॉमस, परफेक्ट, राइट आंसर दिया है आपने एकदम, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सब लोग नोट कीजिए। अर्निंग पर शेयर के बाद डिविडेंड पे आउट रेशो, मतलब कंपनी की अर्निंग्स में से जो हम पे करते हैं, ईपीएस में से कुछ परसेंटेज हम लोग पे करते हैं शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड, यानी ईपीएस डिनोमिनेटर में रहेगा। ईपीएस का कुछ परसेंटेज पे आउट किया जाता है, कुछ रिटेन किया जाता है, कुछ पे आउट किया जाता है। पे आउट मतलब देना, पे करना, ठीक है, और रिटेन करना मतलब रिजर्व्स में वापस डाल देना। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में अर्निंग्स होंगी तो ही आप पे आउट कर रहे हो, बिना अर्निंग्स के हम पे आउट कर सकते हैं कुछ फ्री में डिविडेंड? आप शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे रहे हो अपना, तो अर्निंग्स में से ही दोगे, राइट? तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय इनटू 100, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर इनटू 100। डिविडेंड यील्ड रेशो, यील्ड कैसे पता चलता है? जब हम अपना प्रॉफिट्स मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं,
डिविडेंड यील्ड रेशो में हम लोग डिविडेंड पर शेयर लेते हैं पहले, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। नोट डाउन ऑल ऑफ यू, चारों ये लिखो पहले, पहले 4 और अभी 4, टोटल कितने हो गए? काउंट कर रहे हो ना? पहले वाली स्लाइड पे 4, क्या क्या बढ़ा है? ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट आरओसीई, ईपीएस, डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड यील्ड रेशो। नोट करो, 8 हो गए, अभी बाकी 4 है। नेक्स्ट लिखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, एमपीएस अपॉन ईपीएस, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट वर्थ रेशो। नेट प्रॉफिट अपॉन नेटवर्थ, नेटवर्थ क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड, जो हमें रिटर्न नहीं करना पड़ता है। शेयर होल्डर्स फंड इज अ परमानेंट कैपिटल। शेयर होल्डर्स फंड यानी इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। नेटवर्थ का हमेशा फॉर्मूला याद रखना, जो परमानेंट कैपिटल होता है कंपनी का, उसको हम लोग नेटवर्थ बोलते हैं, जो रिटर्न नहीं करना पड़ता है। इक्विटी कैपिटल को कभी रिटर्न नहीं करना पड़ता है, रिजर्व खुद का पैसा होता है। ठीक है, तो नेटवर्थ आप समझ गए। चलिए, अभी 10 हो गए, आगे की स्लाइड में 4, सेकंड स्लाइड पे 4, अभी ये 2, 10 हो गए, अभी 2 बाकी है हमारा। चलिए, प्रेफरेंस डिविडेंड कवर लिखिए। प्रेफरेंस डिविडेंड कवर इज इक्वल्स टू पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। मतलब हाउ मेनी टाइम्स money we have to pay the dividend, to pay the preference dividend, to cover the preference dividend, how much money we are having in profits. This is coming in times. प्रेफरेंस डिविडेंड कवर हमेशा आंसर टाइम्स में आएगा, हमारे पास कितना गुना पैसा है, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव मनी टू पे द प्रेफरेंस डिविडेंड। चलिए, अभी इक्विटी डिविडेंड कवर का क्या आएगा फॉर्मूला, कौन बताएगा? इक्विटी डिविडेंड कवर, नीचे डिनोमिनेटर में क्या चेंज हो जाएगा? हमारे पास प्रॉफिट्स में से कितना पैसा पड़ा है प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद। जैसे हम ईपीएस निकालते हैं, ईपीएस में पहले हम प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल माइनस करते हैं, ईपीएस में हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में इक्विटी डिविडेंड। इज इट क्लियर? कितने रेशियोज हो गए? 12।
प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर 12 रेशोज हो गए। ये सब फॉर्मूलाज याद करके रखनी है, कल तक सब याद हो जानी चाहिए। और भी सिखाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में।